Good morning, student. Welcome to the fourth lecture of your first chapter in geography, resources and development. So till now we had discussed about resources, types of resources, land as a resource, and now today we'll be focusing on soil as resource. Okay, so please get ready with your books in your hand and go to page number 7, soil as resource. Soil is the most important renewable natural resource. Now, soil is a very important resource. All plants grow on soil. It is a living system. We are supported very intensely by soil. So, it is one of the most important renewable resource. It is renewable resource, but the time taken to renew depends upon many factors. We'll discuss on that. So it is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. Now you see this figure 1.6, soil profile. You have been studying this from last many years. I think right from class 3 and 4 you have been studying about this. What you can see here in this photograph, the topmost layer of the soil is called topsoil or the upper soil layer. It is the layer of soil which is fertile and which supports all plant growth and other living organisms. So this topsoil, how this topsoil has formed? It has formed by the weathering of subsoil, subsoil weathered rocks, sands and silt and clay. So we will differentiate what is sand, silt and clay in the coming topics. So it is the soil, topsoil is fine. You just go in below the topsoil, it will be sandy, rocky, silty, and it is also having some quantity of clay. Then you go beyond that, it will be substratum weathered parent rock material. It is a parent rock material, substratum वेदर्ड का मतलब क्या है? उसने प्रकृति की सारी मार को झेली है, उसको वेदरिंग बोलते हैं, है ना. तो यानी कि अब प्रकृति की क्या मार होती है ना, द एक्शन ऑफ टेम्परेचर, द एक्शन ऑफ वाटर, द एक्शन ऑफ एयर, विंड, दिस इसको जब उसको विदस्टैंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेदरिंग. उसके कारण क्या होता है, उस पेरेंट रॉक के छोटे छोटे टुकड़े होते जाते हैं, वो टूटने लगता है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ वेदरिंग. एंड देन you go deeper than that, it will what you see is unweathered parent bedrock. Unweathered का मतलब है क्योंकि ये अपने प्रकृति से दूर है, यानी एयर वाटर और उसके फ्लो से ये दूर है, इसलिए अनवेदर्ड है. अनवेदर्ड यानी इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इंटैक्ट. ओके, नाउ वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, लाइक igneous, metamorphic, then sedimentary. So it can be anything. It can be igneous rock, it can be sedimentary rock, it can be metamorphic rock, but this is generally how the soil is. सबसे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टॉप सॉइल है. ओके, सो विल गो अहेड. The soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. कुछ फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ के सॉइल को फॉर्म करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स इन विच द सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स? इट डिपेंड्स अपॉन द रिलीफ. वो जो पत्थर, वो जो ज़मीन की बनावट है जिस जगह पे है, उस पर डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन. इट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट रॉक्स, है ना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक, उस पर भी डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स दे आर. इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, means the action of temperature, water, snow. It depends upon the climate, it depends upon the vegetation, kind of vegetation on the vicinity. उसके आसपास में किस तरह के पेड़ पौधे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है. And then lastly, and which is a very most important factor, it depends upon time. It takes a lot of time. We have seen in this chapter, it takes a lot of time to develop a few centimeters of soil, topsoil. So various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil.
chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Not only the action of the environment, also the action of the bio wastes, लीव्स, प्लांट्स, ये जब धीरे धीरे वो डिकम्पोज होते हैं तो दे ऑल्सो क्रिएट सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. ओके, सो it helps in actually making the soil fertile. So chemical and organic changes which takes place in the soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic materials. जो organic materials जो soil में रहते हैं उसको हम बोलते हैं humus. Okay, so on the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age and chemical and physical properties, the soil of India can be classified into different types. तो there are various factors जिसके basis में हम soil को classify करते हैं. So let us study about some important types of soils which are found in our country. So the first one, India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soil. You know, India is a very big country. It's a vast country, and then we have different types of landforms, है ना, कहीं mountain है, कहीं plains है, कहीं plateau है. उसके अलावा different types of we have a vast kind of say temperature zone from south to north. At some places it becomes very hot, at some places it becomes very cold. So these are different types of natural forces. And then we have different types of vegetation type also. So these all are the factors which differentiate between the soils at different areas. So first type of soil which we will study is alluvial soil. And also when we are studying this, keep an eye on page number 9, which actually shows the extent of the soil, locations where the extent and location where they are found in our country. Okay, so this is the most widely spread and important soil. तो ये alluvial soil जो है सबसे widely spread soil type है और बहुत important भी है, क्योंकि हम जितने भी soil type देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा fertile यही soil है. These have been deposited by 3 important Himalayan river systems. ये soil कैसे डिपॉजिट हुआ इतने बड़े एरिया में? बिकॉज ऑफ द 3 इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. इसके कारण में ये सारा ये प्लेन्स में फैला हुआ है. दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. नाउ यू कैन सी, फोकस ऑन दिस मैप, व्हाट यू कैन फाइंड हियर, दिस ऑल दीज are alluvial soils. You can also find it in the eastern घाट के जो plains हैं उसमें भी आप ये soil को देख सकते हैं. It is all extended in the northern India till Rajasthan and Gujarat के एक narrow strip से वो वहाँ पे दिख रहा है आपको. Focus on the map. So these soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri systems. जैसे ईस्टर्न घाट के जो डेल्टाज हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे भी ये alluvial soil आपको दिखेंगे. अब alluvial soil किससे बना हुआ? It is mostly, it's a different proportion of sand, silt and clay. अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंस होता है सैंड थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है, अगर सॉइल पार्टिकल्स उसके जो होंगे वो बड़े साइज़ के होंगे. सिल्ट उससे और छोटे साइज़ का होगा, और क्ले तो एकदम महीन होता है, मिट्टी जिसको बोलते हैं, एकदम उसको जैसे पॉटर्स क्ले होता है जिससे घड़ा बनता है, एकदम महीन होता है, एकदम फाइन पार्टिकल होते हैं. तो क्ले इज़ वेरी फाइन एंड सैंड इज़ वेरी कोर्स, और इसके बीच में जो है उसको हम बोलेंगे सिल्ट. Okay, so it is made up of various proportion of sand, silt and clay. Okay, the alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay. As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valleys, near the places of the break of slope, the soil is coarse. Such soils are most common in Piedmont plains such as Duars, Chos and Terai. अब
क्योंकि ये सॉइल कहाँ से कैरी करके आ रहे हैं, माउंटेन्स से रिवर कैरी करके आ रहे हैं, और माउंटेन्स से जब ये रिवर कैरी करके आ रहे हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग और डिफरेंट एक दूसरे से टकरा के ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तब बाय द टाइम वो रिवर फ्लो होके माउंटेन से प्लेन्स तक आता है, तब वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में वो टूट चुके होते हैं। तो अगर आप उस रिवर कोर्स में ऊपर की तरफ यानी टूवर्ड्स माउंटेन जाएंगे तो आपको जो सॉइल पार्टिकल्स हैं बड़े दिखेंगे, और जैसे जैसे और नीचे आते जाएंगे तो सॉइल पार्टिकल्स और फाइन होते जाएंगे और टूट टूट के और छोटे छोटे होते जाएंगे। तो ये पीडमॉन्ट क्या होता है, पीडमॉन्ट क्या है, पीडमॉन्ट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, है ना, पीडमॉन्ट क्या है, ये अगर ये माउंटेन है तो ये इतने स्लोप में आएगा और ये प्लेन है ना, तो ये माउंटेन और प्लेन को जोड़ने वाला एक जेंटल स्लोप जेंटल स्लोप रहेगा, इसको हम पीडमॉन्ट बोलते हैं। इसको, इस एरिया को क्या बोलते हैं, पीडमॉन्ट बोलते हैं। इंग्लिश में पीडमॉन्ट बोलते हैं, हिंदी में डिफरेंट रीजन्स में उसका अलग अलग नाम है, जैसे कि दुआर, चोज या तराई, इसको तराई भी बोलते हैं। तो दिस माउंटेन स्लोप से जहाँ पे ये प्लेन से मिलने वाला होता है, एक जेंटल स्लोप के जो एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पीडमॉन्ट, और डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में इसको बोलते हैं दुआर, चौस या तराई। सो दिस इज़ व्हाट इज़ पीडमॉन्ट एरिया। अब इसमें अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो एलुवियल के पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े रहेंगे, और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये और फाइनर होते जाएगा। ओके, सो दिस apart from size of their grains or components, soil is also described on the basis of their age। अब ये जो एलुवियल सॉइल है वो बनने के बाद में एज होता है उसका, on the basis of age it is classified into old alluvial and new alluvial। old alluvial को बोलते हैं बांगर, न्यू alluvial को बोलते हैं खादर। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, वैसे तो दोनों ही फर्टाइल हैं, लेकिन क्या होता है, ओल्ड एलुवियल में जो कंकड़ की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहती है, ओल्ड एलुवियल में कंकड़ ज़्यादा होते हैं, और न्यू एलुवियल में इट इज़ मोर फाइनर देन ओल्ड एलुवियल, यानी फाइनर पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे न्यू एलुवियल में, खादर में फाइनर पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे, बांगर में कंकड़ ज़्यादा रहेगा। इसके कारण क्या होता है कि ओल्ड एलुवियल इज स्लाइटली लेस फर्टाइल देन न्यू एलुवियल, है ना, बांगर इज स्लाइटली लेस फर्टाइल देन खादर। सो दिस इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज old alluvial Bangar and new alluvial Khadar. The Bangar soil has higher concentration of conchod nodules than the Khadar. It has यानी Khadar has more fine particles and is more fertile than the Bangar. तो alluvial soils as a whole are very fertile। वैसे तो ये अपने आप में ये पूरा जो ये जो लैंड है ये बहुत फर्टाइल है, इसलिए आप देखेंगे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये जो एरिया है एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड है, बिकॉज वहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। सो एलुवियल सॉइल एज अ होल इज़ वेरी फर्टाइल। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ। यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, प्लीज़ अंडरलाइन, शुगर केन, पैडी, wheat and other cereals and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated, है ना। अब यहाँ पे ये बहुत फर्टाइल है तो इसकी यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छे होती है, बहुत होती है, और खेती बाड़ी बहुत होती है तो यहाँ पे संपन्नता ज़्यादा है, और इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, एंड सो इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। Soils in drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, सॉइल ड्रायर है, वहाँ पे वो थोड़ा सा एल्कलाइन ज़्यादा होता है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एलुवियल सॉइल। लेट्स गो अहेड टू ब्लैक सॉइल। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगुड सॉइल्स। इसको, ये जो ब्लैक सॉइल है वो काला दिखता है, इसलिए उसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं या रेगुड सॉइल भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट, इसलिए इसको कॉटन ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, है ना।
So the black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. It is believed that climatic condition along with parent rock material are the important factors for the formation of black soil. So generally ये देखा जाता है climatic condition और उसका जो parent rock material क्या है उस पर डिपेंड करता है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन. जनरली पेरेंट रॉक अगर लावा से बना हुआ है, मोल्टन लावा से बना हुआ है, तो इट इज़ द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. सो इट इज़ मेड फ्रॉम द लावा फ्लो. ब्लैक सॉइल की खासियत ये है कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं ब्लैक सॉइल के, है ना, एकदम फाइन. तो इट इज़ मोर ऑफ क्लेई मटेरियल उसमें ज़्यादा होता है. सो दिस टाइप ऑफ सॉइल कहाँ पे मिलता है अगर आप देखेंगे तो इट विल बी इन द डेक्कन ट्रैप. जो डेक्कन ट्रैप है, जो डेक्कन एरिया है, अब यहाँ भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एरिया, थोड़ा कर्नाटका का, छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा एरिया, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा. सो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप region spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra is also in Maharashtra, and it is an area near Gujarat, Saurashtra, Maharashtra, Malwa region in Madhya Pradesh. इंदौर वाला जो एरिया होता है उसको मालवा रीजन बोलते हैं, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज. जो गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज हैं जो इधर फ्लो होती हैं, उसमें भी आपको ये ब्लैक सॉइल मिलेगा. द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज़ क्लेई मटेरियल. मैंने आपको बताया कि बहुत ही फाइन क्लेई मटेरियल से अच्छा, ये ब्लैक सॉइल हैज़ अ वेरी गुड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, मॉइस्चर को रिटेन करता है. तो दैट इज़ वाई ऐसे क्रॉप्स जिसमें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा देर तक ज़रूरत होती है वो यहाँ पे अच्छा ग्रो करेंगे. सो दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटाश एंड लाइम. दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स. थोड़ा पुअर है किसमें, फॉस्फोरिक कंटेंट्स उसमें कम होते हैं. जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है तो ये जो ब्लैक सॉइल है उसमें बहुत बड़े बड़े दरारें पड़ जाती हैं. जब वो सूखता है तो क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं. उससे क्या होता है कि एयर जो है, एरिएशन उस सॉइल का बहुत अच्छे से हो जाता है. दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल. दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क. जब ये गीला हो जाता है तो बहुत चिपचिपा हो जाता है और उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत हार्ड भी हो जाता है. जब गीला होता है तो क्या होता है कि पहली जैसी बारिश हुई तो किसानों को जल्दी से उसको प्लॉइंग कर लेनी चाहिए, उसमें हल चला लेना चाहिए ताकि वो आगे बहुत आसानी से उसमें काम हो सके. सो दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर एंड ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड. तो जैसी बारिश हो, पहली बारिश की फुहार हो तो उसमें हल चला लेना चाहिए ताकि उसमें काम करना आसान हो सके. Now the next type of soil is red and yellow soil. The red soil develops and red soil आपको यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा. जस्ट आउटसाइड आवर स्कूल देयर इज़ अ बिग ग्राउंड जिसमें आपको पूरा रेड सॉइल दिखता है ना. रेड सॉइल ही छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जगह पे रेड सॉइल ही पाया जाता है. Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. तो eastern and southern part of the Deccan Plateau आप देखेंगे, eastern and southern part of the Deccan Plateau, what you find is red and yellow soil. So yellow and red soils are also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the middle Ganga plain and along the Piedmont zone of the Western Ghats. Western Ghat के जो Piedmont zone है ना, यहाँ पे भी आपको red soil मिलेगा. These soils develop reddish color due to diffusion of iron. Reddish color क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो इसका डिफ्यूजन हो जाता है इनके क्रिस्टल्स में, तो इसके कारण में वो रेड हो जाता है. और अगर ये हाइड्रेटेड हो जाए, इसमें यानी वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो वो येलो कलर का हो जाता है. इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म. तो ये था रेड एंड येलो सॉइल. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड लेटराइट सॉइल.
Now, laterite soil are particularly found in areas where there is which is characteristic of high temperature as well as heavy rainfall, जहाँ high temperature भी है और heavy rainfall होता है. Laterite had been derived from Latin word later, which means brick. Later का मतलब क्या होता है Latin में brick. तो the laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall. अब ये हाई टेम्परेचर भी है और हैवी रेनफॉल है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है इंटेंस लीचिंग. लीचिंग का मतलब क्या है, पानी से वो उसका टॉप सॉइल बार बार धुलते जाता है, धुलते जाता है, धुलते जाता है, तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस सॉइल के वो वॉश आउट हो जाते हैं. और हाई टेम्परेचर है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जो भी है वो भी डेवलप नहीं हो पाते, तो उसकी जो ऑर्गेनिक कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है. दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स. तो आप फिगर 1.9 में देखेंगे लेटराइट सॉइल व्हाट यू कैन फाइंड इज बहुत ज़्यादा बारिश के कारण वो धुल गया है उसका ऊपर का टॉप सॉइल. दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन. ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, है ना. तो यहाँ पे ह्यूमस कम है क्योंकि जो बैक्टीरिया या डिकम्पोजर जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो धुल गए पानी में. Laterite soils are suitable for cultivation with adequate doses of manure and fertilizers. अब इसमें खेती करनी है तो इसमें काफ़ी मात्रा में मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स लगेंगे, उसके बिना इसमें खेती नहीं की जा सकती. These soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, मध्य प्रदेश and the hilly areas of Odisha and Assam. ये कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका, केरला के एरिया में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, ओडिशा के हिली एरियाज़ में और असम में. आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी. तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करने के बाद अब इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए. रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशूनट. तो कैशूनट उगाने के लिए भी वो सुटेबल है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज एरिड सॉइल. एरिड का मतलब होता है सूखा. एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा. तो हमारे देश के जो सूखे एरिया हैं वहाँ पे जिस टाइप का सॉइल पाया जाता है उसको हम बोलेंगे एरिड सॉइल. तो एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर. तो जनरली क्या है, वो सैंडी हैं इन टेक्सचर, यानी उसकी बनावट में वो सैंडी दिखते हैं, और उनके नेचर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में वो सेलाइन. सेलाइन का मतलब बहुत ज़्यादा नमक है उसमें. और इतना ज़्यादा नमक है कि क्या होता है कुछ एरिया में उसमें उसको वाटर को इवेपोरेट करके उससे सॉल्ट भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि सांबर झील राजस्थान में लास्ट ईयर आपने पढ़ा. सो इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर. सॉइल में ह्यूमस भी कम है और मॉइस्चर भी कम है. द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स. द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. अब इतना ज़्यादा कंकड़ होने से क्या होता है कि पानी का इन्फिल्ट्रेशन जो ज़मीन के अंदर है वो भी नहीं हो पाता है. तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, उसको थोड़ा प्रॉपर इरिगेशन करेंगे या सॉइल कंजर्वेशन करेंगे तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा यूजेबल हो जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान में किया है लोगों ने. सो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल्स बिकम्स कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. ओके, तो ये था एरिड सॉइल. और नाउ फॉरेस्ट सॉइल. तो जो माउंटेन्स और हिली रीजन्स में जो जिस टाइप का सॉइल मिलता है उसको क्या बोलेंगे? माउंटेन सॉइल. और ये बहुत सारे वेरिड है, हर माउंटेन सॉइल या हिली सॉइल एक जैसा नहीं है. These soils are found in hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available, है ना. तो ऐसे एरिया जहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होता है और रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे ये मिलता है. The soil textures varies according to the mountain environment where they are formed. तो इसका जो टेक्सचर है और जिस इलाके में जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसा फॉरेस्ट कंडीशन है, उस हिसाब से उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है. अब क्या है, अगर ये माउंटेन है तो उसकी वैली भी होगी, तो वैली में जनरली ये जो सॉइल का टेक्सचर है वो लोमी या सिल्टी है ना. इसके अंदर उससे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्लेई तो नहीं हैं लेकिन उससे थोड़े बड़े
लोमी या सिल्टी हैं, लेकिन थोड़ा और इसके स्लोप में ऊपर जाएं तो ये वो कोर्स ग्रेन्ड रहेंगे, उसके जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो कोर्स ग्रेन्ड यानी थोड़े दरदरे रहेंगे. So they are loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes. In the snow-covered areas of Himalayas, the soil experience denudation and are acidic with low humus content. तो denudation is a new word. Denudation क्या होता है? Denudation because of the action of the erosion agent. Eroding agent कौन से होंगे? Eroding agent water होता है, snow होगा, wind है. उसके कारण जो टॉप सॉइल वॉश आउट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेन्यूडेशन. क्या बोलते हैं? डेन्यूडेशन. सो डेन्यूडेशन इज एक्सपोजिंग ऑफ द पेरेंट रॉक्स बाय इरोजिव फोर्सेस लाइक वाटर, स्नो, एयर. तो जो टॉप साइड में होता है, बिकॉज इट इज़ कवर्ड विथ स्नो एंड ग्लेशियर्स, वो जितने ज़्यादा वो उसमें वहाँ पे उसमें उसका बहाव होगा तो वो टॉप सॉइल को बहा के ले जाएंगे और पेरेंट जो रॉक है वो एक्सपोज हो जाएगा. इसको बोलते हैं डेन्यूडेशन. It is a very important process in soil erosion also. Okay, so because of denudation on the higher sides, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ वो soil is low in humus and it becomes acidic also. The soil found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. तो जो नीचे हिली एरिया के नीचे वाले जो एरिया हैं वहाँ पे जो है जनरली वो क्या होता है, इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू एलुवियल और वो फर्टाइल होता है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डेन्यूडेशन. सॉइल इरोजन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डेन्यूडेशन. तो जो फर्स्ट लाइन है, प्लीज अंडरलाइन इट, द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ. द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन is described as soil erosion. The denudation मैंने बोला exposing of the parent rock because of the erosive forces of water, air and snow, and it is the top soil is washed out. Then this feature is called soil erosion. The process of soil formation and soil erosion, they are simultaneous. ये होते ही रहते हैं. Formation भी होते रहता है और इरोजन भी होते रहता है. लेकिन कई बार बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स ये जो रेट ऑफ इरोजन है वो फास्ट हो जाता है. जितना सॉइल फॉर्म नहीं हो पा रहा है उससे ज़्यादा वो इरोड हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू. समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब हमारे क्या क्या एक्टिविटीज़ के कारण डिस्टर्ब हो जाता है? सर, डिफॉरेस्टेशन, जंगल हमने काट दिए, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ये सब चीज़ें हम इससे पहले जब लैंड कंजर्वेशन है उसमें डिस्कस किए थे. इसके कारण क्या होता है कि ये जो बैलेंस था इरोजन एंड फॉर्मेशन का वो लूज आउट हो जाता है और इसके कारण इरोजन का रेट ज़्यादा हो जाता है. वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, the running water cuts through the clayey soil and makes deep channels as gullies. Now you focus on this figure 1.12. तेज पानी का जो बहाव है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ऊपर के जो सॉइल है उसको कट कर देगा और कट करके छोटे छोटे नालियाँ बना देगा, है ना. इस टाइप के इरोजन को बोलते हैं गली इरोजन. सो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज. The land becomes unfit for cultivation and is known as badlands. तो ऐसे ज़मीन जहाँ पे ये छोटे छोटे गलीज बन गए हैं और टॉप सॉइल उसमें क्ले सॉइल जो है वॉश आउट हो गया है, इट बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन और इसको हम क्या बोल देते हैं? बैड लैंड, यानी ख़राब ज़मीन. तो ऐसे कहाँ पे है, ऐसे इरोजन कहाँ पे हुए? चंबल घाटी जो है MP में, वहाँ पे ये ऐसा हुआ है और इसलिए उसका नाम रेवाइंस भी बोलते हैं उसको. इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस, है ना. अब ये तो हुआ बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये जो क्लेई सॉइल को बहा ले गए, ये है गली इरोजन. एक होता है शीट इरोजन, यानी लेयर ऑफ वाटर विच फ्लोज ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, और वो जब बहते हैं तो अपने साथ में टॉप सॉइल को भी बहा ले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं शीट इरोजन, है ना. समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, है ना. एक स्लोप में बहुत बड़े एरिया में वो फ्लो कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो नीचे जो जहाँ से वो बह रहे हैं उसके टॉप सॉइल को बहा ले जाएंगे और इस टाइप के इरोजन को बोलेंगे शीट इरोजन. अब
ये तो वाटर का एक्शन हुआ, विंड भी ऐसा ही एक्ट करता है, और विंड जब टॉप सॉइल को हटा के ले जाता है तो उसको बोलते हैं विंड इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल्स ऑफ द फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। अब कई बार सॉइल इरोजन बिकॉज ऑफ बैड प्लॉइंग टेक्निक से भी होता है। प्लॉइंग यानी उसमें हल, हम कैसे उसमें खेतों में हल चला रहे हैं, अगर वो टेक्निक सही नहीं है तो उसके कारण भी इरोजन होता है। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ देयर इज़ अ स्लोप, देयर इज़ अ लैंड विथ स्लोप, है ना। अब ऐसे जगह पे खेती कर रहे हैं, मैं उसको ये तो क्रॉस सेक्शन बताया वैसे सामने से, अगर ऐसा ये खेत है जो कि जेंटल स्लोप है ना, ये स्लोप ऐसा है ना, और उस पर हमने हल ऐसे चला दिया, हल ऐसे चला दिया। अब ये हायर ग्राउंड है, ये लोअर ग्राउंड है, पानी इसमें आएगा तो इस ये जो चैनल्स फॉर्म हो गए हैं उसके थ्रू रैपिडली बहेगा, क्योंकि ये हाइट ज़्यादा, इधर हाइट कम, पानी ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ बहेगा, और ये बहेगा तो क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ गली इरोजन। यहाँ पे क्या कर देगा, गली इरोजन कर देगा और इसके सॉइल को बहा ले जाएगा। क्या होगा कि इसको टॉप सॉइल को बहा ले जाएगा, पूरा वॉश आउट हो जाएगा। यहाँ से पानी आया, गली क्रिएट किया और इसको वॉश आउट कर जाएगा। तो ये क्या होगा, प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप, अप एंड डाउन द स्लोप, इसके कारण क्या होगा, फॉर्म्स चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। तो ऐसी जगह पे हमको अगर खेती करनी है तो प्लॉइंग कैसे करनी चाहिए, प्लॉइंग शुड बी डन इन अ कंटूर। प्लॉइंग कैसा करना चाहिए, प्लॉइंग ऐसा सीधे सीधे नहीं करना चाहिए, प्लॉइंग को कंटूर में ऐसा, हलों को ऐसा चलाना चाहिए ताकि इट विल क्रिएट सम ऑब्स्टेकल्स। पानी को फ्लो करने में यहाँ पे अब तकलीफ होगी, है ना, इट विल क्रिएट ऑब्स्टेकल्स। तो ये इरोड नहीं कर पाएगा। इसको कंटूर फार्मिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको कंटूर फार्मिंग। प्लॉइंग अलॉन्ग द कंटूर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड कंटूर प्लॉइंग, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कंटूर प्लॉइंग, और इस टाइप के फार्मिंग को कंटूर फार्मिंग भी बोलते हैं। माउंटेन एरिया में क्या करना चाहिए, माउंटेन एरिया में स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग, है ना। तो माउंटेनियस एरिया पे आप अगर कभी घूमने जाएं पहाड़ों में तो वहाँ के खेतों को देखेंगे तो उनके खेत ऐसे स्टेप्स में बने हुए हैं। सो इट विल ऑल्सो रिड्यूस द सॉइल इरोजन, इट विल ट्राई टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन। दिस इज कॉल्ड step farming or terrace farming. Steps can be cut out on the slopes making terraces. Terrace cultivation restricts erosion. Western and Central Himalayas have well developed terrace farming. हमारे हिमालय में कभी आप घूमने जाएँ शिमला, उधर जो मनाली जाएंगे तो वहाँ के गाँव के खेत को देखेंगे तो आपको ये इस तरीके के खेत दिखेंगे, स्टेप वाले। So terrace, Western and Central Himalayas have well developed terrace farming. Large fields can be divided into strips, है ना। अब एक बहुत बड़ा खेत है अगर, तो what we can do is हम जनरली यहाँ पे मेड़ बना देते हैं और दूसरी जगह पे यहाँ पे एक स्ट्रिप्स बनाया और यहाँ पे घास उगा दिया, है ना, घास उगा दिया या पेड़ लगा दिए यहाँ पे। तो क्या होगा, इट विल क्रिएट ऑब्स्टेकल्स फॉर द फ्लो ऑफ एयर और वाटर, है ना। विंड को फ्लो होने में या वाटर को फ्लो होने में तकलीफ होगी और इसके कारण क्या है, जो टॉप सॉइल हम उसको बचा के रखेंगे। सो strips of grasses are left to grow between the crops. This break up the force of the wind. This method is known as strip cropping. Planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and is stabilizing the desert of the western India, है ना। अभी राजस्थान के जो इलाके हैं, जो डेजर्ट वाले इलाके हैं, हम चाहते हैं कि वो स्टेबल रहें, वो और बढ़े ना। तो क्या किया, जैसे कि ये सैंडी एरिया है, उसके फ्रिंजेस में यानी किनारे किनारे में वहाँ पे जो ग्रो होने वाले ट्रीज़ या श्रब्स हैं उसको यहाँ पे उगा दिया। तो नाउ इट इज़ नॉट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड दिस लिमिट। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन जोन बनाते जा रहे हैं
ताकि ये जो सैंड है, सैंड ड्यून्स है, वो यहाँ फ्लो ना कर पाए, और जो एक्सटेंट है डेजर्ट का वो वहीं रहे। और या तो फिर हम धीरे धीरे और कोशिश करके इसको जो डेजर्टिफिकेशन हो गया है उसको एफॉरेस्टेशन के थ्रू उसको वापस ग्रीन लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो दिस आर ऑल different measures of soil conservation. This brings us to the end of this chapter. I'll be sharing the notes with you, and you go through the notes and write it in your notes copy. Thank you.